Hey everyone, I am Mohammad Osama Hamid. I welcome you all to DataSeek. We started DataSeek back in 2023 with simple mission to empower 1 lakh students by end of 2025 in data science, data analytics, data engineering, BI, and cloud computing, and help students to excel in this field. Our vision is to help you to become top 1% in your field and become data experts. I am Mohammad Sama Hamid. By professional, I am data architecture and founder of DataSeek. I am on mission to educate 1 lakh students by end of 2025. I am speaker, founder, and social entrepreneur. I have over 7 years of working experience working in industry, and I am top rated data scientist on data professional. To be honest, because like most of the if I talk about my background, I'm a software engineer, and then I started my master's in data science, and it's been like 8 years since I'm doing freelance and data analytics. To be specific, I'm a top rated plus seller on Upwork, and I'm a level 2 seller on Fiverr as well. I've done more than like 4,000 hours on Upwork, and I have an agency on Upwork called Alpha Analytics. Um, so today our topic is learning about different types of dashboard and their specific uses in business scenarios. So इसके अंदर मैंने इस तरह से इसको डिजाइन किया कि if you're a newbie तो आपके लिए भी कुछ होगा, और if you're in your mid career or if you're a professional at a higher level तो आपके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ होगा. And I hope this webinar is helpful for you. So let's begin. We will be covering basics of dashboards. के dashboard actually होते क्या है? Why do we need them? What is the building blocks of dashboard? And then we're going to be discussing about common mistakes in a dashboard. Because अगर आप सिर्फ common mistakes ही अपनी avoid कर रहे हैं dashboard के अंदर, so you can actually make something which is really impactful. So we will be discussing about the common mistake that a lot of people do, but most of the people don't realize that they're doing these mistakes. So other than that, we will be discussing about some best practices for designing effective dashboards, and then we will be discussing about different dashboards and their business scenarios. So let's move on. So basically, dashboard hota kya hai? To like, if I explain it in simpler words, it's like a window to a very complex thing. So like from the window, you can actually see a very complex thing very easily. So basically, it's a it's like a dashboard is like a cohesive uh, insights from a very complex data set that helps user understand a very complex data, and then they can make decisions based on that data. Some key components that we have in a dashboard are KPIs. KPIs are sorry, KPIs are basically big numbers. These are also called bands, like big ass numbers. We use them in the dashboards just so that whenever someone looks at the dashboard, they can directly first look at the KPIs, and then they're going to look bottom towards data visualization and then other things. So first component, we have KPIs, and then we have data visualizations. Data visualizations are like charts and other legends, charts, and stuff like that. Then we have filters and controls. Filters and controls are there because we wanted to explore the data and explore the visuals. So filters are there so that we can control the visualization. And then we have data sources. किसी भी डेटा प्रोजेक्ट के लिए किसी भी एनालिटिक्स प्रोजेक्ट के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपका डेटा है. तो डेटा सोर्सेज इज कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक. मतलब डेटा आपके पास प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होगा, प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड होगा, तो आप उस पर एनालिटिक्स कर सकते हैं. Other than that, it's of no use. Then we have context, layout, design, and annotations. Context is very important in any visualization project. So if someone is looking at your dashboard and he's confused just by looking at it, that means it's missing context. So you have to provide proper annotation, easier to read. It should be easier to read, like user experience, user interface उसका बेहतरीन होना चाहिए ताकि user first glance में देखे तो उसको समझ आ जाए कि what you're trying to tell. We will be discussing about layout design and annotations in our next slide. So let's jump towards common mistakes that usually people do while creating the dashboards. Number one is consistency.
So if you're working at an enterprise level, consistency is very important. Like people do notice a lot about how you build your dashboard. So for example, if I give you an example of a consistency, it's like अगर आपका एक डैशबोर्ड है और उसके अंदर एक हेडर है, वो हेडर एक डैशबोर्ड के अंदर आपका लेट से 90 पिक्सेल्स हाइट पे है और नेक्स्ट डैशबोर्ड में वो 70 पिक्सेल्स हाइट पे है, इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल. सो आई हैव एक्चुअली an example for you as well. Let me share. So, for example, if you look at this dashboard, this is just a layout. It's not a like proper end product. It's just for your understanding. So this is a dashboard title we have, right? And if you can see, the height of the title is 92 pixels. So, and the logo is on the right hand side, and it's of 70 pixel height and 92 pixel width. So this is like just one dashboard. But what consistency is, if you're creating multiple dashboards, तो हर डैशबोर्ड के अंदर एक ही चीज होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि इसमें ये डैशबोर्ड इस तरह बना हुआ है, अगले डैशबोर्ड में आप जाएं तो वो टाइटल ऊपर जा रहा है, लोगो बिल्कुल साइड पे हो गया, ये 90 पिक्सल्स पे हो गया इंस्टेड ऑफ 70, ये वाला जो है ये भी 90 पे चला गया. So that's what consistency means, and it looks very unprofessional when you're creating a dashboard for an enterprise client या कोई mid-sized business में कोई CEO आपका डैशबोर्ड देख रहा होता है तो वही चीज नोटिस करता है कि आपके कितनी कंसिस्टेंसी है डैशबोर्ड के अंदर. So a good dashboard would be like this. So if you're moving between tabs, so literally कोई difference नहीं नजर आ रहा. अंदर obviously visualization change होंगी, मगर consistency के जो components हैं उनकी placement बिल्कुल ठीक होनी चाहिए. So this is what consistency is. Next common mistake is scale. Scale is like when you're creating a visualization, और अगर उसका scale 0 से 100 के ऊपर है, this is what a scale is. और उसके ऊपर आप प्लॉटिंग कर रहे होते हैं. आगे इसके एग्जांपल्स भी आएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. स्केल इज बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्केल की वजह से आप लोगों को डिसीव कर सकते हो. कि अगर स्केल आपका गलत है ना तो आप लोगों को गलत चीज बता सकते हो और लोग समझ भी जाएंगे, क्योंकि यूजुअली आम इंसान को नहीं समझ आता कि स्केल क्या चीज होती है. तो स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके एग्जांपल्स आगे आपको बताएंगे. नेक्स्ट इज क्लटर. मेक श्योर योर डैशबोर्ड इज नॉट क्लटर्ड, कि आपने एक डैशबोर्ड के अंदर 25 विजुअलाइजेशन डाली हुई है तो दैट मींस इट्स अ क्लटर्ड डैशबोर्ड एंड इट्स नॉट गुड. तो क्लटर आपने हमेशा अवॉइड करना है. मेक श्योर के अगर बेस्ड ऑन योर हाइट एंड विड्थ ऑफ द डैशबोर्ड, मेक श्योर के 3 4 5 से ज्यादा विजुअलाइजेशन ना हो, मतलब 4 से 5 के दरमियान आप रहें. देन मेक इट इंटरैक्टिव, कि आप दूसरे डैशबोर्ड पे जंप कर लें तो आपको और ज्यादा इंसाइट्स नजर आ जाए इफ यू वांट मोर visualizations. Then we have wrong choice of visuals. हर डेटा टाइप के लिए कौन सा विजुअल चूज करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप डायमेंशन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लेट्स से बार चार्ट्स वगैरह यूज करने हैं, कोई मेजर्स यूज कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सुपर स्टोर है सेल्स का, और वो आपके पास मल्टीपल स्टोर्स है और उसकी आप चेक करना चाह रहे हैं कि ओवर द टाइम आपके पास लेट्स से कि वो आपका किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए आप जरूरी नहीं है कि आप उस पर पाई चार्ट उसको बना के दे दें ईयर्स के ऊपर एंड ऑल दैट. उसके लिए जो बेस्ट चॉइस है वो ये है कि आप उसके लिए लाइन लाइन चार्ट बनाएंगे. लाइन चार्ट इज कि आपके पास एक एक्सेस होगा और एक वाई एक्सेस होगा और उस पर आपके पास एक लाइन जा रही होगी रिप्रेजेंटिंग योर सेल्स. दिस इज व्हाट चॉइस ऑफ विजुअल मीन्स. एंड इसके ऊपर बहुत सारे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा ऑनलाइन इफ यू जस्ट टाइप दीज वर्ड्स. Then we have insufficient context. For example, if I'm let's say कोविड की एग्जांपल ले लें. अब लेट्स से कि मेरा एक सुपर स्टोर है और उसका बिजनेस और इसी तरह एक लाइन चार्ट ड्रॉ हुआ है, और लाइन चार्ट जो है वो 2020 में आके एकदम यूं नीचे जा रहा है एंड देन 2022 से आगे वो दोबारा ऊपर जा रहा है. तो यूजुअली बंदा देखेगा तो कहेगा ये क्या है, मतलब एकदम नीचे क्यों जा रहा है ये ना. तो उस पे आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना लाजमी है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्लेस एनोटेशंस एंड यू कैन से दिस इज वेयर कोविड अराइव्ड एंड एवरीथिंग स्टॉप्ड, so that's why the sales are down. This is what context actually means, कि आप जो विजुअलाइजेशन में शो करना चाह रहे हैं वो चीज क्या है. और कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एनोटेशन बेस्ड नहीं होता, आप कुछ विजुअल ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं और टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं ताकि आपको पता लगे, यूजर को अंडरस्टैंड इजीली वो अंडरस्टैंड कर सके कि कॉन्टेक्स्ट किस चीज को कहते हैं. देन वी हैव बैड कलर चॉइसेस. दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. हम टैब्लो के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ कलर पैलेट्स हैं और ज़्यादातर लोग वही यूज़ कर रहे होते हैं. दे डोंट प्रेफर एक्सप्लोरिंग मोर देन दैट, but there is a world outside that as well.
what you can do is you can go on Google and type color palette. For example, let me give you an example. If I जैसे ये एक वेबसाइट है कलर्स की, राइट? सो इसमें मैं कोई भी एक कलर दे सकता हूँ। लेट्स से कि आपने कंपनी के ये कोई डैशबोर्ड बनाना है और उस डैशबोर्ड में उनकी कोई स्पेसिफिक कलर थीम है। यूजुअली ये होता है कि जो लोगों की कलर थीम होती है वही डैशबोर्ड की भी होती है, प्रेफर करते हैं लोग, या वेबसाइट की जो थीम होती है वही डैशबोर्ड की भी होती है। तो यू कैन जस्ट पुट वन कलर एंड इट विल जनरेट कलर पैलेट्स फॉर यू, एंड इट चेंजेस बेस्ड व्हेनेवर यू क्लिक स्पेस बार, you can change different colors, and there are a lot of websites जो कि color palettes produce करती हैं, and you can explore it yourself। and इसके नीचे यहाँ पे इसका एक कोड का कलर आ रहा होता है। You can just copy paste it in your visualization tool, whether it's Tableau or maybe Power BI, so you can add that there, and you can use these colors। so इनमें से आप let's say primary, secondary और tertiary color choose कर लें और उसकी बेस पे आप अपना dashboard बना लें, it will look better। So this is what colors are about। Then let's start about bad visualizations। So if you look at this visualization, so what you're currently seeing is this is electricity prices change, and you can see that 2004 से लेकर 2005, 6, 7, 8, 9, 10 till 12 हमारे पास परसेंटेज चेंज आ रहा है प्राइस का, राइट? एंड देन सडनली यहाँ पे हमारे पास जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर आ रहा है। अब स्केल एक ही है हमारे पास, मगर यहाँ पे हम ईयर्स शो करा रहे हैं और यहाँ पे हम मंथ्स शो करा रहे हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रॉन्ग स्केल। बेसिकली ये हो ये रहा है कि कोई पॉलिटिकल कैंपेन चल रही थी जहाँ पे जो जो पॉलिटिकल लीडर था उसने ये विजुअलाइजेशन शो कराई और उसने कहा कि ये देखो भाई, मैं अपने जो कंपटीशन है उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ। व्हाट इनफैक्ट अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये बार्स काफी छोटे हैं, मगर दीज आर मंथली, नॉट ईयरली, राइट? तो if you put them together, it's not that bad as compared to 2012 or 2011। so this is an example of a wrong scale। इसमें यही लिखा हुआ है कि जो बंदा है वो आपको रॉन्ग स्केल डिसीव करना चाह रहा है पॉपुलेशन को, ताकि वो उसको वोट दे सके। So this is an example of a wrong scale। And if we move forward, this is another example। यहाँ पे आपके ऊपर एक न्यूज़ चैनल के ऊपर एक ये चल रहा था। This is more like an infographic, but it's a very bad visualization if we look at it technically। So लेफ्ट साइड पे हमारे पास गुस्टावो है, इसका जो हमारे पास परसेंटेज आ रही है 25, 27 एंड 37। देन राइट साइड पे हमारे पास फीको है, इसकी 3%, 3%, एंड देन 2022 में ऑल द वे टू 19% जा रही है। अब इस डैशबोर्ड के अंदर दो चीजें, इस विजुअलाइजेशन के अंदर दो चीजें जो है वो मिसिंग है। नंबर वन, इसका स्केल नॉर्मलाइज्ड नहीं है। स्केल शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड देन go all the way through the higher range। If it is between 0 and 100, so अगर आप देखते तो फीको और गुस्तावो का कोई खास कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि he's at 25% in 2021 and he's at only at 3%, but the way they have visualized it, उन्होंने बिल्कुल उसको साइड बाय साइड रखा हुआ है। So this is another example of a deceiving visualization, जो कि एक स्केल की प्रॉब्लम हो सकती है। Then we have context। So अभी वो परसेंटेज तो शो करा रहे, मगर हमें ये नहीं बता रहे कि ये परसेंटेज है क्या, लाइक व्हाट इज इट रिलेटेड टू। तो इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट भी मिसिंग है। दैट मीन्स के परसेंटेज इधर इट्स पॉपुलैरिटी और number of votes or like or whatever, like maybe social media following or something like that, we don't know। So context is also missing in this visualization। So that's why the lines are lying। Next we have Pakistan। Whom does Pakistan owe its debt to? ये source है State Bank of Pakistan 2021। Just by looking at the visualization, you can see China का एक significant portion है। Without looking at the numbers, if you just look at the visualization map, तो China का सबसे बड़ा एरिया है। तो यूजुअली जो लोग देखेंगे शुरू में उनको ये लगेगा कि चाइना सबसे बड़ा है, मगर दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज जो प्राइवेट बॉडीज हैं जो अदर है उनका सिग्निफिकेंट पोर्शन है, लाइक 29, 29.3। so that's why this is also not a good visualization। यहाँ पे हमारे पास जो साइज है वो थोड़ा सा डिसीविंग है, मतलब चाइना शुड बी एज पर द परसेंटेज। so that's how it should be। Next, there are some best practices
for designing better dashboards. A good example is just as a map helps you navigate through a landscape, a well-designed data visualization helps you navigate through data. So your dashboard should be like a map and it helps people navigate through the complex data. That's the end result of a dashboard. And whenever you're designing a dashboard, तो usually projects के अंदर ये होता है कि क्लाइंट के साथ आप पहले मीटिंग करते हैं या जो भी आपका स्टेक होल्डर होता है उसके साथ आप मीटिंग रखते हैं और उसमें वो मीटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि उसमें आपने डिफाइन करना होता है कि वो क्या चाह रहा है एंड व्हाट द एंड रिजल्ट शुड बी. So you should always ask questions like when, where, what, who, why. Like, what do people want to know? What business problem does my dashboard address? Do I have all the data I need? If I need more? And then, so जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना वो शुरू में आपको डिफाइन करना होता है और उसकी बेस पे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा डिटेल में लेके जाते हैं. तो सबसे पहले आपने उनसे पूछना है कि व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस, what is the end result for the dashboard and what you're trying to visualize and what you're trying to achieve from the dashboard, because dashboards में भी मुख्तलिफ टाइप्स होती है. कुछ डैशबोर्ड्स होते हैं जो कि यूजुअली जो डैशबोर्ड होते हैं वो ज्यादातर बिजनेस ओनर्स जो है वो देख रहे होते हैं, लाइक द सीईओ लेवल, सी लेवल जितने भी लोग होते हैं, और वो उसकी बेस पे कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं या वो देखना चाह रहे होते हैं कि कुछ डैशबोर्ड्स के अंदर एनॉमलीज क्या हैं. जैसे फाइनेंशियल डैशबोर्ड के अंदर कोई फ्रॉड एक्टिविटीज है तो वो देखना चाह रहे होते हैं कि भाई कौन से लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं. तो ये उनका इंटेंट है, तो इसके लिए डैशबोर्ड बिल्कुल अलग टाइप का होगा. अगर उनका ये इंटेंट है कि हमने देखना है कि ई कॉमर्स स्टोर है, जैसे कोई सुपर स्टोर टाइप है, तो उसके अंदर आपके जो लेट्स से कि सेल्स है वो किस तरह से जा रही है, तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट डैशबोर्ड की अप्रोच लेनी पड़ेगी. उसके लिए आपको सेल्स ओरिएंटेड डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के आपके पास केपीआईज होंगे, ट्रेंड्स होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो वेल परफॉर्मिंग होंगे, कुछ वर्स्ट परफॉर्मिंग होंगे, कुछ रीजन्स होंगे जहाँ पे आप अच्छी सेल कर रहे होंगे. सो so that's why your target audience and your context matters a lot, and you should always ask these questions कि किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, और डेटा, इज इट इनफ डेटा डू वी हैव ताकि हम ये डैशबोर्ड बना सके या ना बना सके. Moving forward, कुछ examples है business dashboards की. I'll walk you through them. ये basically क्या क्या हो सकते हैं. So this, remember I gave you an example of a superstore. So this is a superstore's dashboard. If I move to this is what the dashboard is. So ये एक live dashboard है. Tableau public के ऊपर है. You can also explore it. So basically ये एक ई कॉमर्स बेस्ड डैशबोर्ड, एक सुपर स्टोर है. वो डिफरेंट चीज़ें आप जो है टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर एक डोमेन है उनकी, वो उसके अंदर डिफरेंट जो है कैटेगरीज वो सेल कर रहे हैं ऑल ओवर द यूएस. ठीक है. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्टेक होल्डर के लिए वो ये होता है कि वो जैसी डैशबोर्ड को देखे तो वो फर्स्ट जो मतलब जो पहली जो उसकी नज़र पड़ती है वो एट द टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पड़ती है. तो वो देखता है भाई हमारे पास टर्नओवर आ रहा है विच इज 118K, which is 49% up than previous month. Then we have, sorry, previous year. Then we have volume, then we have orders, then we have profit. So वो इन चार चीज़ों को देख के बता सकता है ओवरऑल कि उसका बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है. एंड देन अगर उसने थोड़ा सा नीचे जाना है तो उसे देखना है कि मेरे पास स्टेट्स कौन से हैं. ड्रिल डाउन व्यू जैसे होता है. सबसे जो टॉप ऑफ द टॉप जितने भी डैशबोर्ड डिजाइन आप कर रहे होते हैं उसमें आपने हमेशा ये देखना होता है कि जो सबसे पहले जिधर यूजर की नजर जाएगी उधर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसाइट्स होनी चाहिए ताकि उसको देख के फौरन डिसीजन देख सके कि भाई एम आई परफॉर्मिंग. तो अभी ये यहाँ पे हमारे पास एक विजुअल है जहाँ पे हमारे पास नवंबर, अक्टूबर, इसी तरह डिफरेंट डेटा आ रहा है और वो चेक कर रहा है मंथ बाय मंथ किस तरह से चल रहा है. करंट मंथ अभी मतलब डेटा नवंबर तक का था 2024, तो वो नवंबर 2024 अभी शो कर रहा है आपको. इट्स अ डमी डेटा. उस इसलिए फिर आप वॉल्यूम पे आ जाए तो वो चेक कर रहा है वॉल्यूम किस तरह से जा रहा है. फिर अब वो इससे देख के बता सकता है कि भाई आई एम डूइंग गुड दिस मंथ एटलीस्ट. तो और नॉट मे बी. सो प्रॉफिट जो है अगर आप देखें तो ये कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 months और या प्रीवियस 2 months. दैट मीन्स प्रॉफिट हमारे पास कम जा रहा है मगर ऑर्डर्स वगैरह बेसिक फिर भी ज्यादा जा रहे हैं. तो this actually helps people to understand their business better. और डैशबोर्ड डिजाइन इस तरह से हुआ है कि इसमें आप कलर भी देख लेंगे, कलर का भी अच्छा यूज हुआ है कि
अब जैसे ये टर्न ओवर इज ब्लू, सो मेक श्योर कि टर्न ओवर हर जगह ब्लू है। देखिए ब्लू, इधर भी सारा ब्लू है, जो मैप के ऊपर टर्न ओवर यूज हुआ है ये भी सारा ब्लू में शो हो रहा है। तेरा टॉप 5 states बेस्ड ऑन टर्न ओवर है, ये इस तरह आ रही है। इसी तरह टेक्नोलॉजी डिफरेंट कैटेगरीज है, ये भी हमारे पास टर्नओवर में जा रही है और सारा ब्लू यूज हुआ है। इसी तरह अगर आप लेट से आपने वॉल्यूम चेक करना है तो ये डैशबोर्ड इंटरैक्टिव भी है, इफ यू क्लिक ऑन इट तो आपके पास वॉल्यूम शो होना चाहिए। अब देखिए, अब एवरीथिंग स्विच टू वॉल्यूम विच इज येलो, और येलो यहाँ पे था। तो बेसिकली कलर्स के थ्रू आप यूजर को बता रहे हैं कि दिस कलर इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, दिस कलर इज रिलेटेड टू टर्नओवर, दिस कलर इज रिलेटेड टू ऑर्डर्स। तो जब भी आप कहीं विजुअल में देख रहे होंगे आपको बार बार इसको नहीं देखना पड़ेगा, अच्छा ये वॉल्यूम लिखा है तो ये वॉल्यूम होना चाहिए, वो कलर से देख के बता देगा। इफ इट इज yellow, then that means it's volume. So this actually helps in readability. तो वॉल्यूम आपको बता रहा है वो मंथ किस तरह जा रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। इसी तरह आप डिफरेंट स्टेट्स में वॉल्यूम, टॉप स्टेट्स कौन सी है, फ्लॉप स्टेट्स कौन सी है वॉल्यूम से रिलेटेड, सेगमेंट्स किस तरह से चल रहे हैं। इसी तरह इफ यू क्लिक ऑन ऑर्डर्स तो हमारे पास ऑर्डर्स का डेटा आ जाएगा, देन हमारे पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का आ जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है एचआर के डैशबोर्ड की। अब ह्यूमन रिसोर्स में जो डैशबोर्ड बन रहे होते हैं, दिस इज रियली गुड डैशबोर्ड इन माय ओपिनियन, बिकॉज इस पे कलर बहुत अच्छे से यूज हुए हुए हैं, स्पेसिंग बहुत अच्छे से यूज हुई है, और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्लेस की हुई है वो बहुत अच्छे से प्लेस की हुई है। तो इसकी भी एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं तो दिस इज HR attrition dashboard. बेसिकली attrition मीन्स के कितने लोग आपके छोड़ के जा रहे हैं। तो वो बेसिकली HR के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपने जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं उनको रिटेन कैसे करना है, तो ये डैशबोर्ड आपको वो बता रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ओवरव्यू में एट्रिशन रेट है 16.1% का, टोटल एट्रिशन जो है। अब ये ऊपर टाइम पीरियड भी आपको बता रहा है कि कब से कब तक, तो ये व्हेन वाला क्वेश्चन जो है ना ये यहाँ पे भी आंसर हो रहा है कि किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक एट्रिशन कितनी थी, टोटल एट्रिशन मतलब नंबर ऑफ पीपल कितने थे, और करंट एम्प्लॉयज हमारे पास 1233 है। इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बता रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे पास 133 लोग हैं जोड़ के गए, 828 अभी रिटेन हुए हैं। इसी तरह सेल्स है, HR है, और फिर एट्रिशन ट्रेंड चेक कर रहे हैं। ये हम देख सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ पे पीक किया है अप्रैल 2022 के अंदर, हमारे पास हाईएस्ट थी, एंड देन फिर हमारे पास नॉर्मल होगी मई में। इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर इसने इन्फॉर्मेशन को इस तरह से प्लेस किया कि इधर देख के वो फौरन बता सके, मतलब ओवरव्यू आपको मिल जाए कि आपका किस तरह से चल रही है जो है ना कंपनी। और अगर फिर हम टॉप राइट कॉर्नर में जाए तो हम डेमोग्राफिक्स देख सकते हैं। अब इसने ना सेगमेंट्स को डिवाइड किया हुआ डैशबोर्ड के अंदर, मतलब एक ही डैशबोर्ड के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स डाले हुए और उनको विजुलाइज किया हुआ है। अब डेमोग्राफिक्स रिलेटेड टू योर जेंडर, एज ग्रुप एंड एजुकेशन। अब जैसे हमें चेक करना है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उनका रेशियो क्या चल रहा है। तो 150 मेल जा रहे हैं और 87 फीमेल जो अभी तक छोड़ के जा चुकी है। इसी तरह एज ग्रुप पे हम चेक कर रहे हैं कि कौन से एज ग्रुप के लोग जो हैं वो जो ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं। तो यू कैन सी इज 25 से 34 के दरमियान जो लोग हैं वो ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये एज ग्रुप होता है जब when you're looking for new opportunities, your life is changing and a lot of other things are like in this age happens, like शादी हो जाती है, बिल्स होते हैं आपके मैनेज करने होते हैं, ऑल ऑफ दैट। सो इट मेक सेंस कि यहाँ पे एट्रिशन रेट ज्यादा है। इसी तरह 35 से 44 एज में थोड़ा कम है, फिर 45 से 55 और कम है, फिर 55 से और भी कम है। इसी तरह डिग्रीज की बेस पे देखें तो बैचलर्स वाले अभी सबसे ज्यादा जो है एट्रिशन रेट उनका ज्यादा है। इसी तरह मास्टर्स डिग्री एंड ऑल ऑफ दैट। और नॉट ओनली दैट, ये अभी टॉप 5 पे चल रहा है, आप इसको ऑल रोल्स पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जॉब रोल भी आपको बता रहा है कि किस तरह से कौन सा जॉब रोल जो है वो चल रहा है। इसी तरह सर्विस स्कोर चेक करें तो वो आपको बता रहा है इसमें कि कितने सेटिस्फाइड है बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स दैट वी हैव। और इसी तरह रीसेंट एट्रिशन चेक करें तो किन किन लोगों की हुई है और वो किस किस पे पैकेज करते हैं। सो दिस इज एन HR डैशबोर्ड एग्जांपल। Moving forward, we have this is again sales dashboard. This is related to uh, sales for different products that we have. Let me show you. So this is a soft drink sales. अब आप चेक कर सकते हैं कि ये डैशबोर्ड भी एक अच्छा डैशबोर्ड है। लाइक लेफ्ट साइड पे उसने काफी सारे फिल्टर्स दिए हुए हैं ताकि यूजर्स जो है
बड़े आराम से एक्सपोर्ट अगर कोई करनी है पीडीएफ में तो वो क्लिक करेगा, इसका पीडीएफ निकल के आ जाएगा और यू कैन सेंड इट टू एनीवन। देन वी हैव इमेजेस, इमेज डाउनलोड करनी है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, यू कैन डू दैट। और डाउनलोड क्रॉस टैब मीन्स कि आप इसका एक टैबलेट फॉर्मेट में डेटा डाउनलोड कर सकते हैं डैशबोर्ड के। फिर हमारे पास यहाँ पे फिल्टर्स आ जाएंगे, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसको भी कनेक्ट कर लें। बेसिकली इस डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास फिल्टर्स भी है, इंटरैक्टिविटी भी है, कलर का यूज भी अच्छा हुआ है, स्पेसिंग भी अच्छी हुई है, लाइक प्रॉपर पैडिंग है, मतलब हर एक इवनली स्पेस्ड है ऑब्जेक्ट और सही से प्लेस हुआ है अपनी जगह पे। टॉप पे हमारे पास केपीआईज आ रहे हैं, बॉटम में हमारे पास, अब जैसे अब चेक करें उन्होंने ड्रिल डाउन कैसे किया हुआ है। हमारे पास सबसे पहले सेल्स बाय रीजन, बाय स्टेट है, बाय रीजन है, देन बाय कंपनी है, देन बाय कैटेगरी है, देन बाय प्रोडक्ट है, और देन बाय टॉप 10 कस्टमर्स है। दिस एक्चुअली मैटर्स अ लॉट व्हेन यू डूइंग अ विजुअलाइजेशन, के वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो उसको पता लग रहा है कि मैं जितना लेफ्ट टू राइट जाता जाऊंगा उतनी ज्यादा मेरे पास ड्रिल डाउन व्यू आता चला जाएगा। तो इसी तरह वो स्विच कर सकता है सेल्स में, प्रॉफिट में, ऑर्डर्स में, और ऊपर से यहाँ पे हमारे पास डेट टाइम पीरियड आ रहा है। टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो आप किसी कंपनी के लिए डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हैं तो टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो हमेशा सबसे पहले यही चेक करेंगे कि किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड पे की इनसाइट्स हम देखना चाह रहे हैं बेसिकली। फिर इसी तरह आप इसको प्रॉफिट पे शिफ्ट कर सकते हैं तो ये प्रॉफिट से रिलेटेड इनसाइट्स आपको देगा। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक सेल्स डैशबोर्ड। Yeah, so another dashboard domain is social media. So social media पे आपके एड्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या आपका जो इनसाइट्स है, तो दिस इज अ वेरी इंसाइटफुल डैशबोर्ड जो कि आपको एक व्यू में सारे आपके मेन जो केपीआईज है उनके बारे में बताता है, हाउ दे आर परफॉर्मिंग ओवर द टाइम पीरियड। सो वी लुक एट दिस वन, ये आपको बता रहा है कि आपका ट्रेंड किस तरह से जा रहा है। अब यह 6.7% लिखा होता है, राइट? तो जैसे मैंने बात की थी कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, 6.7% उससे नीचे लिखा हुआ है वर्सेस प्रायर मंथ। तो राइट नाउ वी डोंट नो कि 6.7% प्रायर मंथ था, ईयर था। अगर वो ये ना लिखता, वी हैव टू लाइक स्ट्रेन ऑन इट कि ये क्या है। तो सोशल मीडिया डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास टोटल वॉच टाइम क्या है आपका, एवरेज वॉच टाइम क्या है, टोटल वीडियोस क्या है, कितनी है, यूनिक व्यूज कितने हैं, और किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो versus prior month, that is 4.9% negative, which is not good probably. Then we have average views per viewer. Then we have impression CTR. We have different KPIs related to social media जो कि यहाँ पे विजुअलाइज हुई है, और एक गो में आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपका सोशल मीडिया किस तरह से चल रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, another dashboard example, this is a very simple dashboard, और इसमें ये बेसिकली जो है एफटीए प्रोडक्ट रिकॉल्स है। एफटीए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है यूएसए के अंदर, जो कि चेक कर रही होती है कि कौन से प्रोडक्ट्स जो है रिकॉल होंगे और कौन से जो है वो पास होंगे। तो ओवरऑल ऊपर उसने केपीआई दिए हुए हैं, ओवर द टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसी तरह उसने रिकॉल सेवेरिटी बताई हुई है, स्टेटस बताया हुआ है, टॉप 10 रिकॉल बताए हुए हैं, फर्म्स विद मोस्ट रीसेंट रिकॉल्स बताया हुआ है। लाइक सिंपल, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट पीपल डू इज के वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं डैशबोर्ड बनाने में, जबकि डैशबोर्ड का मकसद होता है कि कम्युनिकेट करना डेटा को इफेक्टिवली। तो यू डोंट हैव टू क्रिएट फैंकी डायग्राम, सनबर्स्ट चार्ट्स वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स करके। सिंपल बार चार्ट से भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, और टारगेट ऑडियंस उस पे, मतलब यूजुअली जो कंपनीज में सीईओ लेवल, सी लेवल के बंदे होते हैं, दे डोंट प्रेफर कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन, दे प्रेफर इजी टू रीड विजुअलाइजेशन। सो बार चार्ट is very effective way of communicating it. So you can just use bar charts and get the job done. नेक्स्ट वी हैव फाइनेंस रिलेटेड डैशबोर्ड। अब इसके अंदर हमारे पास बजट से रिलेटेड है, इसमें हमारे पास की फिगर्स शो कर रही है अक्टूबर 2023 की। अब ऊपर हमारे पास बता रहा है रियल टाइम ओवरव्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगेंस्ट बजटरी टारगेट्स अलाउइंग द इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड डिसीजन मेकिंग। हमारे पास मंथ टू डेट की फिगर आ गई है वर्सेस द टारगेट विच इज 1.35 मिलियन। ये जो स्पीडोमीटर चार्ट है, दिस इज जस्ट an image, this is not an actual working chart. So yeah, other than that we have year to date हमारे जा रहा है, ये एक मेट्रिक होता है। इसी तरह 12.08 मिलियन है अगेंस्ट द टारगेट 12.35 मिलियन।
इसी तरह वर्स्ट परफॉर्मेंस में हमारे पास सप्लाई, सब्सिडरी, ग्लोबल कमर्शियल्स, ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है। तो ये डिफरेंट हमारे पास केपीआईज आ रही है, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब ये देखिए उसने टारगेट ऑडियंस पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जस्ट लेट्स से कि अगर वो इस टारगेट ऑडियंस के लिए क्या है, वो JFM ये क्या है, एक कॉमन मैन के लिए तो मे बी अंडरस्टैंडेबल ना हो, मगर सिंस ये फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस के लोगों को पता होगा कि ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है। तो उसने जस्ट एक उसके फर्स्ट कैरेक्टर जो है ना उसका लिख दिया, और उसको पता लग गया भाई ये इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और अगेंस्ट लेट्स से कि अगर वो उससे नीचे जा रहा है तो रेड हो रहा है। इसी तरह ओवरऑल वो चेक कर रहा है कि क्या किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस चल रही है। तो उसी डैशबोर्ड का सेकंड वो ये है कि ये उसने थोड़ा सा ड्रिल डाउन व्यू दिया हुआ है। उसमें मंथ टू डेट हमारे पास मेट्रिक्स आ रहे हैं, ईयर टू डेट आ रहा है, ब्रेक डाउन आ रहा है, नॉट लाइक दैट। देन वी हैव अगेन सुपरस्टोर की एक और एग्जांपल है। द सेम डेटा डिजाइन इन टोटली डिफरेंट वे। लेफ्ट साइड पे उसने आपको बता दिया है कि प्रोडक्ट एनालिसिस करना है, लोकेशन एनालिसिस करना है, या कस्टमर एनालिसिस करना है, या ऑर्डर्स डिटेल में जाना है। यू कैन स्विच between these, and this dashboard will show you that. So this is about it. I hope this is insightful for you guys. Thank you very much. And over to you, Sama. थैंक यू अली फॉर योर टाइम। और आपने जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया अबाउट द बेसिक प्रॉब्लम्स वी फेस वाइल मेकिंग डैशबोर्ड्स, उसके बाद क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएं। और टू बी ऑनेस्ट आई एम वर्किंग फ्रॉम पास्ट 7 years एंड आई लर्न अलॉट फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, जिसमें आपने हर चीज़ को बड़ा इंटरेक्टिव रखा और आपने एक डिटेल्ड में चीज़ें बताई। आई होप कि इट्स क्रिएट द वैल्यू टू आवर ऑडियंस एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। हम 1-2 मिनट दें क्या? वी टेक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस एंड दैट्स ऑल। सो आप क्यूए के सेक्शन में जो हमारी ऑडियंस हैं, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस एंड वी कैन आंसर इट लाइव। Okay. Ali, can you see the QA part below the section? Sorry, my mic was mute. I totally get your point. Basically, what I mean by complex visualization, like most of the cases में they don't work because जो target audience होती है वो उस पर depend करता है। अगर तो if they are aware of salary charts, or if they are like they can actually interpret it, तो go for it. It's a very good chart. उसकी practicality पे बात करें तो it's a good chart, no doubt about that. और another thing आपके question से मुझे पता लगा कि I have saved another thing for you guys, ताकि आप कुछ इससे कर सके। Like the people I follow is number one Andy Kriebel, or other than that, if I can show you, I have actually put people here. So अगर आप देखें हमारे पास तो मतलब the people I follow is YouTube के ऊपर आप SQL Bell को फॉलो कर सकते हैं, देन आप एंडी क्रीबल को फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, देन इंफॉर्मेशन लैब है यूट्यूब के ऊपर भी है, और आई थिंक लिंक्डइन पे भी है। वेरी गुड कंटेंट। टैबलो पब्लिक पे जाए तो आप केविन फ्लार्ज को भी देख सकते हैं और एंडी क्रीबल को भी देख सकते हैं। तो ये आपके पास ये लिटरली दे आर द zen master is like the guru of Tableau or any other, like you can take inspiration from these designs and then create your own. So this process actually helps in building really good visualizations. So yeah, thank you for asking that question. So Ali, we have like couple of more questions in Okay. chat. If you want, you can answer one by one. Isn't talk about the data set to get the trends we want to get from the provided data? Didn't get your question really. ट्रेंड्स की अगर आप बात कर रहे हो डेटा सेट की, तो टू माय अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू मीन इज के डेटा सेट, या डेटा सेट का ऑब्वियसली क्लीन होना, डेटा सेट में हमारे पास डेटा होना लाजमी है, तभी हम ट्रेंड्स को जो है प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और डेटा एक्सप्लोरेशन इज इटसेल्फ अ टास्क बिफोर डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं। इट्स लाइक फाइंडिंग pebbles in an ocean, so you have to get through every insight and then check which is valuable insight and then use it for visualization.
when we have next session and can get slides. ये सामा बता सकेंगे? We can मैंने रिकॉर्ड कर लिया सेशन. We can share the recording soon once is edit. Junaid पूछ रहे हैं how to communicate with the client at the start because there are a lot of complexities for newbies. So newbies के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने स्किल सेट को पॉलिश करें और इतना पॉलिश करें कि आप किसी भी किस्म का डेटा प्रोजेक्ट, लेट्स से अगर टैबलो का स्किल है तो आप ये नहीं कि टैबलो की एक सर्टिफिकेशन हार्डली आप 6 घंटे में कर सकते हैं. यू नो द बेसिक्स, दैट डजंट मेक यू एन एक्सपर्ट. तो you have to actually practice a lot. Practice and practice. That's where you can actually become impactful in terms of a Tableau developer or a Tableau consultant. So आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. उसके बाद जब आप क्लाइंट के पास जाएं तो easier way is के एक सेकेंड स्टार्टिंग में यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो अच्छा रखें, क्योंकि क्लाइंट ज़्यादातर उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्लाइंट को वो लोग अट्रैक्ट करते हैं कि जो जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो होता है. अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो तो क्लाइंट विल डेफिनेटली ऑन बोर्ड यू. वो ये नहीं देखता कि आपने, कुछ हद तक वो देखता है कि आपने बिड वगैरह में क्या लिखा हो, मगर वो मेन चीज वो देखता है कि इसने काम क्या किया हुआ पहले. वो अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है, आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी, लेट्स से अगर आप किसी अमेरिकन क्लाइंट से बात करें तो इंग्लिश मैटर्स अ लॉट और यू शुड लर्न द प्रॉपर लाइक एक्सेंट एंड प्रॉपर जो आपने वर्डिंग यूज कर रहे हैं, इंग्लिश आपकी खराब ना हो, अच्छे से आप कम्युनिकेट कर सके. सो दैट्स व्हाट विल हेल्प in communicating with the clients. I hope it answers your questions. उसके बाद why Pakistanis are now appearing on Tableau Public, now appearing on Tableau. Are we not using Tableau enough, or are we shy, or are we artistic enough? पाकिस्तानीज भी हैं जो कि टैबलो पे होते हैं. एक दो एग्जांपल्स मैंने देखी हैं, मगर बहुत कम है ऑब्वियसली, क्योंकि अक्सर लोग, आई एम नॉट श्योर कि क्यों नहीं ज्यादा होते. होना चाहिए, क्योंकि जैसे टैबलो के अंदर डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म्स है जिसमें विज ऑफ द मंथ के रिलेटेड कुछ है, उसके अलावा डिफरेंट और उनके प्रोग्राम्स है जिसमें वो आपको मास्टरी के बैजेस वगैरह दे रही होती है, तो उसमें ऑब्वियसली करना चाहिए. और दूसरा ये कि टैबलो एक पेड टूल है, शायद इस वजह से भी जो है वो उसमें होता है, मगर स्टूडेंट पे आपको 1 ईयर का फ्री भी मिल जाता है. दैट्स अनदर थिंग, यू शुड डू इट. Next question Junaid का है for me. Yes, next month we are starting the free series of courses, or I would love to publish, or you can say produce content on data. That's all, and I will also love to see you guys growing. Next question वसीम का है आपके लिए. मोहम्मद वसीम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. और अब देखें, टूल सीखना इज नॉट इनफ. मतलब अगर मैंने टैबलो सीख लिया, पावर बीआई सीख लिया, दैट्स नॉट इनफ. क्योंकि अगर मैं किसी बिजनेस को सर्विस दे रहा हूँ तो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, कि उनको, उनके पास एक पैकेज है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आइडियल केस पे तो ये होता है कि उनके पास डेटा टीम होती है और डेटा टीम सारा डेटा मैनेज कर रही होती है. वो डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट होता है, उसको वो डेटा दे देते हैं कि भाई ये आपने विजुअलाइज करना है. आप कहते हैं भाई ये फील्ड मिसिंग है, ये डाल दो, वो कहेंगे ओके हमने डाल दी. मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं भी होता कि आपके पास डेटा की कोई टीम नहीं होती. तो क्लाइंट्स यूजुअली उनको प्रेफर करते हैं जिनके पास थोड़ा डेटा का स्किल भी होता है, जैसे कि सीक्वल इज लाइक अ बैकबोन फॉर डेटा. तो आपको वो लाजमी आनी चाहिए. अब जैसे पावर बीआई या टैबलो है, इसके इससे डेटा जो कनेक्ट हो रहा है, इवन टैबलो के अंदर भी आप सीक्वल यूज कर सकते हैं, और पावर बीआई के अंदर आई थिंक डैक्स यूज होती है. तो जो डिफरेंट डेटा सोर्सेज आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, उस पर भी आपकी थोड़ी बहुत कमांड होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट डेटा कनेक्ट कर सके, कुछ जॉइंट्स वगैरह लगा सके, कुछ फील्ड्स मिसिंग है तो उनको इन्वेस्टिगेट कर सके. तो इस तरह की चीजें, दैट्स व्हाई दे राइट इट लाइक दिस. पाइथन इज गुड फॉर डेटा विजुअलाइजेशन. पाइथन के अंदर भी लाइब्रेरीज है यू कैन एक्चुअली क्रिएट विजुअलाइजेशन, बट वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है. वो कोडिंग साइड पे चली जाती है कि आपको बहुत ज्यादा कोड करके फिर एक, मतलब एक सिंपल सा बार चार्ट अगर आप टैबलो में अंडर 5 मिनट्स बना सकते हैं तो मे बी पाइथन के अंदर आपको 15 मिनट्स लग जाए. तो specifically Python is not for data visualization, but you can do data analysis based on
like using Python or SQL maybe. Tableau prep allow playing with, yeah, Tableau तो पूरा एक इकोसिस्टम है. Tableau के आपके पास Tableau server भी है, Tableau prep भी है. Tableau prep को आप different data sources से connect कर सकते हैं. मतलब it's kind of an extract, load and transform kind of a thing. मगर for major transformations और बहुत बड़े data sets पे transformations करनी है तो वो फिर आपको database में करनी पड़ेगी. जो Tableau prep थे वो बैठ जाता है. Is Tableau user friendly for someone who knows little bit of Power BI? Yeah, Tableau is actually easier than Power BI. Analysis and visualization. That data analysis basically ये होता है कि लेट्स से कि आपके पास एक डेटा आ गया. अब ये विजुअलाइजेशन से पहले की स्टेज है. विजुअलाइजेशन के पहले की स्टेज में आपने डेटा को देखना है कि डेटा स्क्यूड तो नहीं है, कि डेटा के अंदर कोई आउटलायर्स तो नहीं है, डेटा के अंदर क्या क्या ट्रेंड्स चल रही है, डेटा के अंदर क्या चीजें हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूँ. तो ये सारी चीजें डेटा एनालिसिस के अंदर आ जाती है. हाउ डू यू रेट टैब्लो एज कम्पेयर टू पावर बीआई? वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. In terms of performance, both are good tools, but पावर बीआई जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड है. मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने उसको, मतलब आई इफ आई एम यूजिंग मैक आई कांट यूज पावर बीआई, सो दैट्स वन कॉन ऑफ पावर बीआई. बट आई कैन यूज टैबलो इन विंडोज मैक. अब तो M1 के लिए भी टैबलो ने वो नेटिव सपोर्ट ऑन कर दिए. और larger data sets पे I think Tableau performs better. So it's about pros and cons and what is your use case. सेकेंडली, क्लाइंट्स ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अलावा कैसे सिक्योर किए जा सकते हैं, मीन वेबसाइट्स. तो बेसिकली देयर आर थ्री मार्केट्स. वन इज फ्रीलांस मार्केट, जहाँ पे कुछ कुछ मिड साइज और स्मॉल साइज बिजनेसेस भी होते हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे टॉपटेल है, अपवर्क है, फाइवर है, पीपल पर आवर है. देयर आर मेनी अदर वेबसाइट्स जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसपे आपको डिफरेंट क्लाइंट्स मिलते रहते हैं. देन वी हैव मिड लेवल क्लाइंट्स जो कि फ्रीलांस को प्रेफर ही नहीं करते प्लेटफॉर्म्स को. वो चाह रहे होते हैं कि उनको एक प्रॉपर कंपनी रीच आउट करे, प्रॉपर बिड के थ्रू या प्रॉपर कोल्ड कॉलिंग या ईमेल के थ्रू, और देन वो उनको अपनी चीजें जो है पिच करें. एंड देन एक्चुअली मिड लेवल क्लाइंट्स पे ज्यादा पैसा होता है. द वे यू कैन रीच आउट टू देम इज हैव अ गुड पोर्टफोलियो, गुड वेबसाइट, लाइक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग शुड बी ऑन पॉइंट. और देन व्हेन यू रीच आउट टू देम, तो आप उनको बता सकते हैं कि हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उसके लिए हम ये चीजें कर सकते हैं और इससे आपका ये फायदा हो सकता है. तो इस तरह से आप आउटसाइड फ्रीलांस प्लेटफॉर्म क्लाइंट्स को चेक कर सकते हैं. लिंक्डइन इज ऑल्सो अ गुड रिसोर्स जहाँ पे आप क्लाइंट्स को देख सकते हैं. अदर देन दैट, आप ईमेल्स के थ्रू ईमेल मार्केटिंग वगैरह, ज्यादातर मार्केटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन चला जाएगा. टू माय नॉलेज आप ज्यादातर अपना जितना पर्सनल ब्रांड आप अच्छा करेंगे, उतना ज्यादा आपको क्लाइंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे. Insightful webinar. Next question. Appreciated, Vinay. Thank you. Next question एक यूनिस का है. He is asking about What sources would you courses. for beginners to get started with creating effective dashboards? Resources की यही है कि सबसे पहले आप कोई फॉर्मल कोर्स कर लें, जैसे यूडेमी पे हो गया, कोर्सेरा पे हो गया, और काफी सारी और भी अब तो वेबसाइट्स है. उसका फायदा ये होगा कि इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. जो यूडेमी वाले हैं उस पर आपको कोर्स भी मिल जाएगा, तो आपकी बेसिक्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी सीवी भी अच्छी हो जाएगी. उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फॉलो द पीपल दैट आई मेंशनड, लाइक केविन फ्लार्ज, द इंफॉर्मेशन लैब, एसक्यूएल बैले. ये इस यूट्यूब के ऊपर है, आप जाके देख सकते हैं. तो उससे आपके और फर्दर स्किल्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे. तो फर्स्ट इज कि आप कोई कोर्स करें, मिड लेवल तक एक्सपर्टीज हासिल करें, एंड देन एक्सपर्ट्स को देखें कि वो डैशबोर्ड में क्या मैजिक करें, और उसके बाद उसको अपना इमिटेट करने की ट्राई करें और अपना वर्जन बनाएं. So that's how you can achieve better results. That's about it. I think we have like the questions from मतलब काफी ज़्यादा questions पूछे हैं, and we are मतलब उनके query और questions we have resolved it. I think that's all from the QA side. Thank you everyone for joining the session. I hope it's interactive. और इसके बाद आपको एक feedback का form आएगा. It's kind of survey which we are doing, and I hope you take the maximum benefit from this course. Thank you all. Okay, I think last is okay. Thank you, Venus. Okay, everyone. Thank you. Thank you.
Yes, Ahmed, the recording will be on our YouTube channel and we will share the recording.